Jai friends, welcome to Kalyani IS Academy. In this lecture we will study ecology and ecosystem. Now start the lecture and understand what is ecology. See, though this topic is not included in our mains syllabus, yet this is important because various types of questions have been asked in the previous year's question papers, right? For an example, what is bioaccumulation, what is biomagnification, food chain, food web, right? Ecological pyramids, etc., etc. And second, if you have to understand the basics of ecology and environment, then we have to study ecosystem. And third thing is that this is also important to understand the environmental pollution. So therefore, on the basis of previous year's question papers, on the basis of concepts, and on the basis of knowledge which would help us to understand the other topics, right? This ecology and ecosystem is most important for us. So now let's study what is ecology. See, the study of organisms, the study of the environment, and the study how organisms interact with each other, and the study how organisms interact with their environment is known as ecology, right? और यहाँ पर ecology एक जो है साइंस की ब्रांच होती है, तो वही इको सिस्टम जो है वो क्या होता है? इको सिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नेचर, राइट? तो इकोलॉजी में स्टडी की जाती है और इकोसिस्टम क्या है? एक स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या होती है? नेचर होती है. दिस इज द डिफरेंस, राइट? नाउ यदि ये 3 मार्कर में पूछा जाए कि व्हाट इज इकोलॉजी, तो आपको 3 मार्कर के लिए ये जो है डेफिनेशन आपको याद रखना है, राइट? और 3 मार्कर के लिए सीधा इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, the environment, and how organisms interact with each other and with their environment, right? The ecology is studied at various levels such as organisms, population, community, biosphere, right, and ecosystem. The term ecology was first used by Ernest Haeckel in 1869. और ये जो जितने भी फैक्ट्स हैं ये आपको 3 मार्कर के लिए क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट? सो द टर्म इकोलॉजी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय अर्नेस्ट हैकेल इन 1869 एंड अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट वाज द फर्स्ट पर्सन, राइट, जिन्होंने इकोलॉजी पर स्टडी की थी. देयरफॉर Alexander von Humboldt is considered as the father of ecology, whereas E.P. Odum is considered as the modern father of the ecology, or we can say that E.P. Odum is the father of ecology in modern time, modern context, right? And Professor Ramdev Misra is the father of ecology in Indian context. The largest unit of the ecology is biosphere, right? तो biosphere में जो है जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी में हमेशा शुरुआत में ऑर्गेनिज्म की क्या की जाती? स्टडी की जाती है. तो इंडिविजुअल लेवल पर, तो हमारी अर्थ पर, राइट, हमारी अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी इंडिविजुअल लेवल पर, राइट, इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी की जाती है कि उनकी फूड हैबिट्स क्या हैं, उनका इकोलॉजिकल नेचर क्या है, राइट, उनका नेचुरल हैबिटेट कहाँ है. तो इन इकोलॉजी ऑर्गेनिजम्स आर स्टडीड एट इंडिविजुअल लेवल, राइट. फिर जब ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं तो उनसे उनकी क्या बनती है? पॉपुलेशन तैयार होती है, राइट. और फिर जब पॉपुलेशन हो जाती है तो फिर स्पेसीज को पढ़ा जाता है, और अगर एक पर्टिकुलर एरिया में 3-4 स्पेसीज पाई जाती हैं तो वहाँ पर कम्युनिटी डेवलप होती है, राइट. और इस तरीके से एक पर्टिकुलर एरिया में इकोसिस्टम क्या होता है? इवॉल्व होता है. इकोसिस्टम से जो बड़ी यूनिट होती है वो क्या होती है? बायोम होती है. और बायोम से बड़ी जो यूनिट है वो क्या होती है? बायोस्फीयर होती है. और मैंने बताया था कि बायोस्फीयर इज द प्लेस ऑन द अर्थ वेयर लैंड, एयर एंड water, right, meet each other to
provide the circumstances to survive the life। तो इस तरीके से बायोलॉजी में इस तरीके से इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, स्पेसीज, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर की क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। नाउ लेट्स स्टडी इकोसिस्टम। सी, an ecosystem is the structural and functional unit of nature where living organisms interact among themselves and also with their surrounding physical environment, right? Ecosystem term was first used in 1935 by A.Z. Townsley। सो 3 मार्कर के लिए हमेशा आपको रिमेंबर करना है, इकोलॉजी टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय अर्नेस्ट हैकेल इन 1869, वेयर एज द इकोसिस्टम टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1935 बाय A.Z. Townsley। Right now, what are the features of ecosystem? And this may be asked as a 5 marker question. What is ecosystem and what are the characteristics of ecosystem? Or what are the features of ecosystem? So the first feature is ecosystem is structured and well organized। एक इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, राइट, इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स जो हैं फूड को सिंथेसाइज करते हैं, फिर उसको कंज्यूमर के द्वारा क्या किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। लेटर जो डीकम्पोजर्स होते हैं उनके द्वारा उन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को अगेन न्यूट्रिएंट्स में क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है। साथ ही साथ ये वेल क्या होता है, स्ट्रक्चर तो होता है जिसमें एनर्जी का जो फ्लो है वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक होता है। सो इन दिस वे इकोसिस्टम इज स्ट्रक्चर्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। सेकेंड, इकोसिस्टम इज नेचुरल रिसोर्स सिस्टम, or we can say that ecosystem provides various type of natural resources. Third, an ecosystem is an open system in which there is continuously inflow and outflow of substances as well as energy। इकोसिस्टम में जो सन है, सन से एनर्जी का क्या होता है, इनफ्लो होता है, राइट। सो देयर जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम इज एन ओपन सिस्टम वेयर देयर इज अ कंटिन्यूअस इनफ्लो ऑफ एनर्जी। तो सन से जो एनर्जी है उसका कंटिन्यूअसली क्या होता है, इनफ्लो होता है। फिर इस एनर्जी का यूज प्रोड्यूसर्स के द्वारा फूड को सिंथेसिस करने में किया जाता है, राइट। फिर वो एनर्जी, या हम ये कहें कि उसका 10% जो एनर्जी है वो कंज्यूमर्स के द्वारा क्या की जाती है, कंज्यूम्स की जाती है। इस तरीके से इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ सब्सटेंसेस एंड एनर्जी होता है। Biological succession takes place in an ecosystem. The productivity of an ecosystem depends on the availability of energy. This is the reason why कि जो ट्रॉफिक्स होते हैं, ट्रॉफिक्स पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। What is the reason behind it? Right? See, sun rays are perpendicular between the tropics. तो ट्रॉपिक्स के बीच में ही जो सनरेज होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं, देयरफॉर देयर इज अ हाई टेम्परेचर हियर, और वी कैन से दैट देयर इज अ हाई एनर्जी, और अलोंग विद दिस देयर इज अ हाई रेनफॉल हियर। So because of the high temperature, high energy, or we can say that high rainfall, the biodiversity is maximum here, right? और उसको हम कह सकते हैं productivity of an ecosystem depends on the availability of energy. The development of ecosystem occurs gradual, right? So these are the features of the ecosystem, right? Now let's study the components of ecosystem. तो जैसे हमने इन्वायरमेंट के कंपोनेंट पढ़े थे वैसे ही हम किसके, इकोसिस्टम के एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। सो द कंपोनेंट्स कैन बी कैटेगराइज इन बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट, राइट। जो बायोटिक कंपोनेंट है वो लिविंग कंपोनेंट से मिलकर बने हुए होते हैं, और जो अबायोटिक कंपोनेंट है वो नॉन लिविंग से मिलकर क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। और ये बहुत ही क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, जो कि प्रीवियस ईयर्स में जो है पूछा जा चुका है, राइट। सो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में, राइट, द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में भी कैटेगराइज्ड एज बायोटिक कंपोनेंट, जिनमें कि क्या आते हैं,
लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं, वहीं अबायोटिक जो कंपोनेंट हैं इसमें क्या होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट आते हैं, राइट। अबायोटिक कंपोनेंट, तो इकोसिस्टम के ऐसे कंपोनेंट्स जो कि नॉन लिविंग होते हैं उनको ही अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। और अबायोटिक कंपोनेंट को फर्दर फिजिकल कंपोनेंट में, इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में क्लासिफाई किया जा सकता है। फिजिकल में क्या आता है, जैसे क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, तो फिजिकल कंपोनेंट में लाइट है, टेम्परेचर, विंड, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड क्या हो जाएगा, टोपोग्राफी। वही ऑर्गेनिक कंपोनेंट में क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। तो जो plants synthesize their own food and store in the form of starch which is a carbohydrate। तो इस तरीके से अबायोटिक कंपोनेंट में, ऑर्गेनिक कंपोनेंट में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रोटीन्स। तो वहीं इनऑर्गेनिक में क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक में वाटर, एटमॉस्फेरिक गैस, सॉइल, मिनरल्स एंड क्या हो जाएगा, रॉक्स हो जाएगा। सो दीज आर द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। नाउ द बायोटिक कंपोनेंट, तो बायोटिक कंपोनेंट्स को फर्दर जो है क्लासिफाई किया जा सकता है प्रोड्यूसर में, राइट, कंज्यूमर्स में और डिकम्पोजर्स में। तीनों में अंतर क्या होता है, प्रोड्यूसर्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच दैट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जिसमें सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स जो हैं इंक्लूड होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, ऑटोट्रोफ्स भी कहा जाता है। कंज्यूमर्स का सीधा सा मतलब होता है कंज्यूम करने वाले। सो दोज ऑर्गेनिजम्स विच do not synthesize their own food but depend on other organisms for their food and nutrition are known as consumers, right। और consumers फिर तीन प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड क्या हो जाएगा, टर्सरी। जो प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं उनको प्राइमरी कंज्यूमर्स कहा जाता है, हर्बीवोरस कहते हैं, राइट। जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करते हैं उनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहा जाता है, राइट। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करते हैं उनको टर्सरी कंज्यूमर कहा जाता है, राइट। फिर डिकम्पोजर्स आते हैं, राइट। डिकम्पोजर्स को एक तरीके से, डिकम्पोजर्स में क्या आते हैं, एक तो सेप्रोफाइट्स आते हैं और एक तरीके से जो डिकम्पोजिशर्स होते हैं, राइट। डिकम्पोजिशर्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स जो कि ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देते हैं और अगेन जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें कन्वर्ट कर देते हैं। So let's study these biotic component one by one. The first is producer। अब प्रोड्यूसर की डेफिनेशन मैंने अभी बताई थी, तो 3 मार्कर के लिए आप याद रखें, organisms, see organisms that synthesize their own food in the presence of sunlight are known as producers, right, or autotrophic organisms. For an example, green trees, plants, etc, etc. Second, consumers, those organisms that do not synthesize their own food but depend on other organisms for their food and nutrition are known as consumers, right। और consumers फिर 3 प्रकार के होते हैं। First is primary consumers, right। If organisms feed on the producers जो कि अपना फूड क्या करते हैं, स्वयं सिंथेसाइज करते हैं, तो if organisms feed on producers उनको ही प्राइमरी कंज्यूमर्स कहा जाता है और इन्हें ही हर्बीवोर्स भी कहा जाता है। नाउ सेकेंडरी कंज्यूमर्स, इफ एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स विच इन टर्न ईट प्लांट्स और प्रोड्यूसर्स। या कुल मिलाकर मैं ये कहूँ कि ए से, इफ द एनिमल ईट्स अदर एनिमल, राइट, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को क्या करता है, कंज्यूम करता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर वही लिखा है कि विच इन टर्न ईट द प्लांट्स और प्रोड्यूसर, और जो प्लांट और प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करता है उसको ही क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो सीधी सी बात है कि इफ एनिमल फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर तो उनको ही सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है, जिनको कार्निवोर भी कहते हैं, राइट। फिर थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर, टर्सरी कंज्यूमर। इफ एन एनिमल फीड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर तो उसको ही क्या कहते हैं, ओमनीवोर कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ग्रास हो जाएगी, तो ग्रास किस में आएगी, यहाँ पर प्रोड्यूसर में आएगी, राइट। तो ग्रीन ट्रीज और प्लांट्स प्रोड्यूसर्स में आएंगे। फिर ग्रास को जैसे हमने कहा कि ग्रास होपर कंज्यूम करता है, तो ग्रास होपर जो है हर्बीवोर होगा और उसको ही प्राइमरी कंज्यूम कहते हैं। फिर
जो ग्रास होपर है उसको अगर फ्रॉग कंज्यूम कर लेता है तो फ्रॉग वुड बी हियर द सेकेंडरी कंज्यूमर, और यदि फ्रॉग को स्नेक कंज्यूम कर लेता है तो उसको ही क्या कहा जाता है, टर्सरी कंज्यूमर कहा जाता है। और टर्सरी जो कंज्यूमर होते हैं इनको टॉप कॉर्निवोर भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डीकंपोजर्स, राइट। तो डीकंपोजर्स क्या होते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स विच डीकंपोजेस द ऑर्गेनिक मैटर into nutrients are known as decomposer, right? And decomposer are those organisms that obtain their nutrition from decaying organic matter, right? इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, decomposers भी कहा जाता है, right? साथ ही साथ इनको सेप्रोफाइट्स भी कहा जाता है और डेंड्रीबोरस भी इनको कहा जाता है। तो decomposers obtain their nutrition from decaying organic matter, इसीलिए इनको जो है सेप्रोफाइट्स भी बोला जाता है, डेंड्रीबोरस भी बोला जाता है, जैसे फंजाई हो जाएगा और सम बैक्टीरिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पैरासाइट, क्योंकि ये भी हेट्रोट्रोप में ही आते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं, देखिए, पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट ऑब्टेन देयर फूड एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स आर नोन एज पैरासाइट्स। और ये भी फिर दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल पैरासाइट्स। सो organisms that obtain nutrition by living outside the body of organism is known as external parasite। जैसे क्या हो जाएगा, मॉस्किटोस हो जाएगा, राइट, या लाइस हो जाएगा। सेकेंड, फिर इंटरनल पैरासाइट्स या इंट्रापैरासाइट्स, organisms that obtain nutrition by living inside the body of animals are known as intraparasites। For an example, plasmodium, राइट। सो यहां पर आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। सो हियर आर द प्रोड्यूसर्स लाइक ग्रास, राइट। सो प्रोड्यूसर्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो ये जो क्या हो जाएगी, प्रोड्यूसर है ग्रास। फिर ग्रास को ग्रास होपर ने क्या किया, कंज्यूम किया, राइट। तो जो प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं उनको प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है। फिर जो प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करते हैं उनको सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है, जैसे ब्लू बर्ड हो जाएगा। फिर दोज हु कंज्यूम सेकेंडरी कंज्यूमर उनको टर्सरी कंज्यूमर कहा जाता है, राइट। स्नेक, और जो स्नेक को कंज्यूम करता है उसको एपेक्स प्रीडेटर कहते हैं, जिसको कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म कंज्यूम नहीं करता है। बट चाहे वो प्राइमरी कंज्यूमर हो, सेकेंडरी कंज्यूमर हो, टर्सरी कंज्यूमर हो, या एपेक्स प्रेडेटर हो, या जो ग्रास है, अगर ये डेड हो जाती हैं, इनकी डेथ हो जाती है, तो इनको डिकम्पोजर्स या फंगस के द्वारा क्या किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है। नाउ लेट्स स्टडी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम एंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। देयर आर हाई चांसेस दैट यहां से 11 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सके कि व्हाट आर, राइट। 11 मार्कर क्वेश्चन में 2-3 सेगमेंट्स होते हैं, तो पूछा जाएगा व्हाट इज इकोसिस्टम एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, एक्सप्लेन, राइट। नाउ 5 मार्कर में पूछा जा सकता है व्हाट इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्सप्लेन, राइट। और पूछा जा सकता है व्हाट इज एक्वेटिक इकोसिस्टम। सो डिफरेंट क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम को मेनली नेचुरल और मैन मेड में क्या किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। द फर्स्ट इज नेचुरल इकोसिस्टम, सेकेंड इज मैन मेड इकोसिस्टम। The ecosystem which occurs naturally is known as natural ecosystem, and the ecosystem which is developed by humans is known as artificial ecosystem or man-made ecosystem. So now let's talk about man-made or artificial ecosystem. What is the definition of man-made? Right? So if the ecosystem is developed or created by humans, then this is known as man-made or artificial ecosystem. इसको भी further हम classify कर सकते हैं, ecosystems depend on less solar energy,
right? So ecosystem depends on less solar energy, for an example agricultural farms. Then artificial pond जिसमें फिशरीज की जाती है, एग्रीकल्चरल फार्म्स जिसमें क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जाता है, देन एक्वाकल्चर जिसमें जो डिफरेंट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको जो है प्रोड्यूस किया जाता है. देन इकोसिस्टम डिपेंड ऑन फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल के आधार पर एक तो क्या हो जाएगा, अर्बन इकोसिस्टम हो जाएगा, एंड सेकंड क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेचुरल सिस्टम इन डेप्थ, बिकॉज यहाँ से टेरेस्ट्रियल है या जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, राइट, यहाँ से 5 मार्कर को क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या 5 मार्कर क्वेश्चन फॉरेस्ट इकोसिस्टम से पूछा जा सकता है, ग्रासलैंड से पूछा जा सकता है. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सेगमेंट, right? So let's talk about the natural ecosystem. What is natural ecosystem? See, if ecosystem occurs or develops, right? If ecosystem occurs or develops naturally, then this is known as natural ecosystem. And if this natural ecosystem occurs on the surface of the earth, तो उसको कहा जाता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. एंड इफ दिस नेचुरल इकोसिस्टम अकर्स और डेवलप्स इन वाटर, देन दिस इज नोन एज एक्वेटिक इकोसिस्टम, राइट. जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसको ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी और साल्ट कंटेंट फर्दर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम और ट्रांजिशनल और ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम में क्लासिफाई किया जा सकता है. सो दिस इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी दीज इकोसिस्टम्स इन दिस सिंगल लेक्चर. देयरफॉर एक्वेटिक इकोसिस्टम को जो है हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. इन दिस लेक्चर वी विल फोकस ऑन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को फर्दर फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में या डेजर्ट इकोसिस्टम में क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है. What is the definition of terrestrial ecosystem? Right? So if the natural ecosystem occurs or develops on the surface of the earth, then this is known as terrestrial ecosystem. Right? And on the basis of organisms or plants, right, this may be classified as a forest ecosystem, grassland ecosystem and desert ecosystem. Let's talk about the forest ecosystem. राइट, अब सीधी सी बात है, द इकोसिस्टम, राइट, द इकोसिस्टम विच डेवलप्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और जिसमें ट्रीज होते हैं उसको ही क्या कहा जाता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम कहा जाता है. और फॉरेस्ट इकोसिस्टम को फिर फर्दर जो है क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ हीट एज वेल एज क्लाइमेट. देखिए हमारी जो अर्थ है, ये अर्थ क्या है, स्फेरिकल है. अब आपको पता होगा कि अर्थ पर जो अवेलेबिलिटी ऑफ टेम्परेचर है या क्लाइमेट है वो यूनिफॉर्म नहीं है, राइट. द सन रेस, राइट, द सन रेस आर परपेंडिकुलर बिटवीन द ट्रॉपिक्स, राइट. अगर हम देखें तो ये 23.5 क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ क्या हो जाएगा, कैप्रिकॉर्न हो जाएगा, राइट. तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सन रेज होती हैं, सन रेज आर परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर ऑफ द अर्थ और 0 डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ पर टेम्परेचर जो है अगर हम देखें तो कॉन्स्टेंटली क्या रहता है, हाई रहता है. सो द टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर. साथ ही साथ यहाँ पर कन्वेंशनल रेनफॉल होती है, इसलिए रेनफॉल भी क्या होती है, मैक्सिमम होती है. तो बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर एंड द कन्वेंशनल रेनफॉल, राइट, हियर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड. फिर यहां से अगर हम देखें तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है, जो कि ट्रॉपिक पर जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, राइट. तो इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक्स के बीच में जो फॉरेस्ट डेवलप होते हैं उनको ही क्या कहा जाता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहा जाता है, क्योंकि इनके लिए जो है थ्रू आउट द क्या होता है, रेनफॉल भी होता है और क्लाइमेट भी रहता है और टेम्परेचर भी क्या रहता है, हाई रहता है. तो बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल जो है ट्रॉपिक्स के बीच में ही, बिटवीन द ट्रॉपिक्स जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या होता है, डेवलप होता है. फिर जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड की ओर मूव करते हैं तो वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होना क्या होता है, शुरू हो जाता है, राइट. और
जो 45 to 66 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो उनके बीच में कौन से फॉरेस्ट डेवलप होते हैं? टेम्परेट फॉरेस्ट क्या होते हैं? डेवलप होते हैं, राइट। तो यहाँ पर ट्रॉपिक्स के रिगार्डिंग में टेम्परेचर क्या होता है? लो होता है, और इनको भी ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ टेम्परेचर एज वेल एज रेनफॉल, इनको भी एवरग्रीन फॉरेस्ट में और डेसिडियस फॉरेस्ट में क्या किया जाता है? क्लासीफाई किया जाता है, राइट। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में भी जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है और रेनफॉल भी हाई होता है, वहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। जहाँ पर टेम्परेचर तो हाई होता है बट रेनफॉल जो है वो रेनफॉल क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। रेनफॉल किसी स्पेसिफिक पीरियड में ही होता है, अर्थात मानसूनी रेनफॉल होता है, तो वहाँ पर मानसूनी फॉरेस्ट या डेसिडियस फॉरेस्ट पाया जाता है। फिर अगर हम देखें तो जैसे जैसे हम 23.5 से ऊपर की ओर जाते हैं या तो वहाँ पर टेम्परेट फॉरेस्ट क्या होते हैं? डेवलप होते हैं, राइट। टेम्परेट फॉरेस्ट में यहाँ पर जो है टेम्परेचर क्या होता है? लो होता है, टेम्परेचर लो होता है, बट अगर थ्रू आउट द ईयर अच्छा रेनफॉल होता है तो वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, और यदि टेम्परेचर भी लो हो और रेनफॉल भी लो हो तो वहाँ पर टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं। फिर मेडिटेरियन सी, राइट, मेडिटेरियन सी के अराउंड में जो कंट्रीज हैं जैसे फ्रांस है, इटली है, राइट, और उस अफ्रीका है या एशिया है, उन कंट्रीज में जो है मेडिटेरियन फॉरेस्ट के जो है मेडिटेरियन फॉरेस्ट क्या होते हैं? डेवलप होते हैं, राइट। फिर कॉनिफेरस फॉरेस्ट हो जाएंगे जिनको टैगा फॉरेस्ट भी कहा जाता है, और फिर आखिरी में अगर हम देखें तो टुंड्रा फॉरेस्ट, राइट। तो जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं वो 66.5, राइट, 66.5 जिसको हम कहें तो आर्कटिक सर्कल, और हियर 66.5 इन साउदर्न लेटीट्यूड में ट्रॉपिक ऑफ क्या हो जाएगा? सो कि आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल के रिगार्डिंग जो पाए जाते हैं उनको टैगा फॉरेस्ट कहा जाता है, इनको ही कोनीफेरस फॉरेस्ट भी कहा जाता है। फिर 82.5 के ऊपर जो फॉरेस्ट डेवलप होते हैं उनको ही टुंड्रा फॉरेस्ट कहा जाता है। इनमें भी आर्कटिक टुंड्रा फॉरेस्ट हो जाएगा और अल्पाइन क्या हो जाएगा? टुंड्रा फॉरेस्ट हो जाएगा, राइट। तो इनको जो है हम 1 बाय 1 करके यहाँ पर बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो जो इसका जो क्रक्स है वो मैंने आपको समझा दिया है। अब कुछ यहाँ पर फैक्ट्स लिखे हुए हैं, एंड देयर आर 2 रीजंस बिहाइंड दिस, राइट। फर्स्ट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है 5 मार्कर में पूछे जा सकते हैं, राइट। या फिर कई बार जब हम एनवायरनमेंट पॉल्यूशन को समझना चाहते हैं तो वहाँ पर भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लेट्स स्टडी द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, राइट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को हमने अच्छे से समझ लिया है, अब कुछ फैक्ट है तो वो भी आप दिमाग में जो है रखते जाना। सो लेट्स स्टडी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स पर ही क्या होते हैं? डेवलप होते हैं, जहां पर हाई टेम्परेचर होता है और हाई क्या होता है? रेनफॉल होता है। सो दीज रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, और बिकॉज ऑफ द हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, राइट, ये अपने जो लीव्स हैं उनको ऑल टुगेदर शेड नहीं करते हैं, राइट। देयरफॉर देयर इज नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन एंड ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इनकी जो कैनोपीज होती हैं वो बहुत ही क्या होती हैं? थिक होती हैं, राइट। तो द कैनोपीज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime। ये इनकी कैनोपी बहुत ही क्या होती है? डेंस होती है, इसलिए जो सन रेज हैं वो सरफेस तक पेनेट्रेट ही नहीं हो पाती हैं। यहाँ पर हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, एवोनी, महागोनी आर फाउंड। सेकेंड इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, राइट। तो मैंने बताया था कि
जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट वहाँ पर डेवलप होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर तो हाई होता है बट वहाँ पर जो रेनफॉल है वो मानसूनी होती है, राइट। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस आर द मानसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया एंड सेंट्रल अमेरिका, राइट। और ये सीजनल चेंजेस को क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। जो रेनफॉल है वो थ्रू आउट द ईयर नहीं होता है, देयरफॉर दीज ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन टू कंजर्व द वाटर, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, डेसिडियस फॉरेस्ट कहा जाता है। यहाँ पर हार्डवुड ट्रीज जो है वो पाए जाते हैं, फॉर एन एग्जांपल साल, टीक, नीम, सीसम एक्सेट्रा। और जो हार्डवुड ट्रीज हैं आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, जैसे जो सॉल है या टीक है, टीक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द फर्नीचर, राइट। सॉल से जो है रेलवे स्लीपर बनाई जाती हैं, राइट। नीम का भी जो है वेरियस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, राइट। तो ये कहाँ पर, मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन्स में होते हैं। तो जैसे ही हम अर्थ में जो ट्रॉपिक्स हैं, ट्रॉपिक्स के थोड़ा ऊपर जाते हैं, तो एज वी मूव फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू अपवर्ड, और यहाँ पर साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से डाउनवर्ड, जैसे मूव करते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। और मिड लैटिट्यूड होते हैं उनके कोस्टल एरियाज में ही ये क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन, राइट, एंड दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कंटिनेंट्स। फॉर एन एग्जांपल इन साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना, साउथ ईस्ट क्या हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा। तो ये जो है ईस्टर्न मार्जिन पर जो है पाए जाते हैं, right, and they comprise both hard as well as soft wood like oak, pine, right, eucalyptus etc. और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर इनका जो है ये इनका क्या हो जाएगा यहाँ पर इमेज हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट हो जाएंगे, राइट। तो सिंपल सी बात है कि एज गोइंग टुवर्ड हायर लैटिट्यूड देयर आर मोर टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, राइट। और इनको डेसिडियस क्यों कहा जाता है, क्योंकि दीज फॉरेस्ट, राइट, दीज फॉरेस्ट शेड देयर लीफ इन ड्राई सीजन्स, राइट। और ये कहाँ पर, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए में, चाइना में, न्यूजीलैंड में, राइट, चिली में क्या किए जाते हैं, फाउंड होते हैं, राइट। साथ ही साथ दे शेड, और वी कैन से दैट टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन, एग्जाम्पल ओक, एस, बीच एक्सेट्रा, राइट। नाउ मेडिटेरियन फॉरेस्ट हो जाएंगे। मेडिटेरियन फॉरेस्ट, तो देखिए मेडिटेरियन फॉरेस्ट जो है वो मेडिटेरियन सी के अराउंड पाए जाते हैं। तो मेडिटेरियन फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। हैंस इनका नाम क्या रखा जाता है, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट रखा जाता है, right, and this kind of vegetation is also found outside the actual Mediterranean region। तो जो एक्चुअल मेडिटेरेनियन रीजन है उसके अलावा भी ये कैलिफोर्निया इन यूएसए, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न अमेरिका, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं, राइट। और यहाँ की स्पेसिफिक कंडीशन क्या है, वो ये है, right, these regions are marked for hot dry summers and mild rainy winters। तो जो winters होते हैं वो mild rainy होती हैं, बट जो summers होते हैं वो कैसे होते हैं, hot dry होते हैं। So because these regions are marked for hot dry summers and mild rainy winters, इसीलिए यहाँ पर साइट्रस फ्रूट्स जो है वो क्या किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, राइट। इन एरियाज में वर्तमान समय में साइट्रस जो फ्रूट्स हैं वो उनका प्रोडक्शन किया जाता है, जैसे ऑरेंजेस, फिग्स, ओलिव्स, राइट, ग्रेप्स आर कॉमनली कल्टीवेटेड हियर। देयरफॉर इटली और फ्रांस में बड़े पैमाने पर जो ग्रेप्स हैं उनका प्रोडक्शन किया जाता है और उससे कई प्रोडक्ट जो हैं वो बनाए जाते हैं। इसीलिए ये अपने आप में क्या होते हैं,
यहाँ पर डिफरेंट जो है इकोसिस्टम पाया जाता है और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ जो है ज़्यादा नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, फोर्थ हो जाएगा हमारा कोनीफेरस फॉरेस्ट, जिनको टैगा फॉरेस्ट भी बोला जाता है। तो इन द हायर लेटीट्यूड 50 to 70 डिग्री, तो इन द हायर लेटीट्यूड 50 to 70 डिग्री ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द स्पेक्टिकुलर कोनीफेरस फॉरेस्ट जो है पाए जाते हैं। और कोनीफेरस फॉरेस्ट को ही क्या कहा जाता है, टैगा फॉरेस्ट कहा जाता है, राइट। और इनकी अगर हम देखें तो ये इनकी जो आकृति है वो कैसी होती है, कोन के समान होती है। कोनीफेरस देखिए इस तरीके से, ये क्या होती है, इस तरीके से इनकी आकृति होती है। दिस इज बिकॉज ऑफ टू रीजन, इतने हायर लेटीट्यूड पर स्नोफॉल होता है और स्नोफॉल में अगर जैसे मैंने कहा कि ये ट्री है, अगर इस ट्री में स्नोफॉल होगा तो यहाँ पर जो स्नो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगी और ये ट्री सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर जो है कोन टाइप की क्या पाई जाती है, कैनोपी पाई जाती है, ताकि जो स्नो है वो डायरेक्ट कहाँ पर, अर्थ पर आ जाती है, राइट। तो ये हायर लैटिट्यूड पर पाए जाते हैं, इनको टैगा फॉरेस्ट भी कहा जाता है, राइट। दीज आर द ट्रीज विच फाउंड इन हिमालयाज, हमारे भारत में हिमालय में पाए जाते हैं और ये टॉल होते हैं। टॉल के साथ साथ में इनकी कोन टाइप की क्या होती है, कैनोपी होती है, जिससे जो स्नो है वो डायरेक्ट नीचे चली जाती है और ये एवरग्रीन क्या होते हैं, ट्री होते हैं। इनकी जो वुड है, द वुड ऑफ दिस ट्री इज यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प, राइट। और पल्प से ही फिर क्या किया जाता है, पेपर या न्यूज़ पेपर को जो है प्रिंट किया जाता है। साथ ही साथ पैकेजिंग बॉक्सेस और मैच बॉक्स भी इस वुड से जो है बनाए जाते हैं। और यहाँ पर चीर, पाइन, राइट, जो है जो एक्सेट्रा जो है ट्रीज जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमने जो है 4 को पढ़ लिया है। और उसके बाद में अगर हम देखें तो जो टुंड्रा फॉरेस्ट, राइट, तो 82.5, राइट, या अगर हम एक तरीके से कहें तो लिटरली 82 डिग्री जो हायर लेटीट्यूड है वहाँ पर टुंड्रा फॉरेस्ट पाए जाते हैं और आर्कटिक रीजन में जो आर्कटिक टुंड्रा फॉरेस्ट पाए जाते हैं और अल्पा टुंड्राइन फॉरेस्ट होते हैं, जहाँ पर जो वेजिटेशन है वो बहुत ही क्या होता है, हार्ड कंडीशंस में ही ग्रो कर पाता है। साथ ही साथ यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी क्या होती है, मिनिमम होती है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड विच इज ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अब देखिए, या तो टेरेस्ट्रियल पर क्या पाए जाते हैं, ट्रीज पाए जाते हैं, जहाँ पर ट्रीज पाए जाते हैं वहाँ पर फॉरेस्ट होते हैं, या फिर क्या पाई जाती है, श्रब्स या ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। तो ग्रासलैंड्स इकोसिस्टम, राइट। तो द इकोसिस्टम वेयर ग्रास इज द मेन कंपोनेंट इज नोन एज ग्रासलैंड इकोसिस्टम। और ग्रासलैंड इकोसिस्टम को भी हम टेम्परेट ग्रासलैंड में और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो जो अगर हम देखें तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में सबसे पहला क्या हो जाएगा, टेम्परेट ग्रासलैंड। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी से लेकर किसी भी एग्जाम में जो ग्रासलैंड्स है ये पूछे जा सकते हैं। सीधा 3 मार्कर के लिए आप याद रखें कि जैसे पूछ लिया जाता है कि राइट डाउन द 3 टेम्परेट ग्रासलैंड्स, द नेम ऑफ 3 टेम्परेट ग्रासलैंड्स, या फिर आपसे सीधा सीधा डाउन्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो आप क्या लिखेंगे, तो अगर आपने ये स्लाइड को अच्छे से पढ़ लिया, जैसे डाउन्स है, एक फैक्ट तो ये लिखा है कि ये कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। दूसरा फैक्ट ये लिखा है ये कैसा है, टेम्परेट ग्रासलैंड है, राइट। और तीसरा ये किस में आता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में आता है, राइट। और चौथी चीज आप इनमें से लिख सकते हैं कि ये सीरियल प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं और ये मिल्क प्रोड्यूसिंग रीजन्स में है। तो इस तरीके से आप किसी भी ग्रासलैंड के बारे में 3 मार्कर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स स्टडी ग्रासलैंड इकोसिस्टम। और जो ग्रास इकोसिस्टम है उसको फिर टेम्परेट ग्रासलैंड में, राइट, टेम्परेट ग्रासलैंड में और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में क्लासीफाई कर सकते हैं। जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वो वर्तमान समय में एग्रीकल्चरल लैंड में क्या किए गए हैं, कन्वर्ट किए गए हैं। तो दीज ग्रासलैंड्स हैव बीन कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चरल फील्ड एंड ओवर देयर सीरियल्स आर प्रोड्यूस। तो इसलिए जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स है वो मेजर सीरियल प्रोड्यूसिंग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड है। साथ ही साथ यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री की जाती है, इसीलिए मिल्क प्रोड्यूसिंग रीजन्स भी है।
राइट। और एग्जाम्पल के लिए प्रेरी, पंपास, डाउन्स, कैंटरबरी, पुस्ताज, स्टेपी, वेल्ड। क्लियर। तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स जो है वो मेजर सीरियल प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं, राइट। ये जो मेजर सीरियल प्रोड्यूसिंग ग्रासलैंड्स हैं, मेजर मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्रासलैंड्स हैं, एग्जांपल्स ये हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें से अगर हम देखें तो प्रेरी, जो प्रेरी ग्रासलैंड हैं वो यूएसए में पाए जाते हैं, पंपास साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, पुस्ताज हंगरी में पाए जाते हैं, स्टेपी यूक्रेन में और साउथ वेस्ट रशिया में पाए जाते हैं। एंड एज यू नो दैट द बार इज गोइंग ऑन बिटवीन यूक्रेन एंड साउथ वेस्ट रशिया, इसीलिए इंटरनेशनल में वीट की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो चुकी है, क्योंकि जो स्टेपी है इनको वीट बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। देन वेल्ड कहाँ पर हो जाएगा? साउथ अफ्रीका में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, राइट। तो जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है इनमें शॉर्ट ग्रास पाई जाती है और ये वाइड ग्रासलैंड होते हैं। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में, ट्रॉपिकल जो ग्रासलैंड है वो शॉर्ट एवं वाइड ग्रासलैंड्स होते हैं। यहाँ पर लॉन्ग एंड डेंस जो है ग्रास क्या है? पाई जाती है। तो लॉन्ग एंड जो डेंस है वो ग्रास पाई जाती है, राइट। और इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएंगे? कैंपोस, लानूस और सवाना। कैंपोस ग्रासलैंड जो है पाया जाता है ब्राज़ील में, लानूस पाया जाता है कोलंबिया एवं वेनेजुएला में, और सवाना पाया जाता है सेंट्रल एंड ईस्ट अफ्रीका में एंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न अमेरिका में। तो सेंट्रल एंड ईस्टर्न अमेरिका तथा सेंट्रल एंड ईस्ट अफ्रीका में सवाना ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। तो सवाना, लानूस, कैंपोस ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के एग्जाम्पल हैं। तो वहीं स्टेपी, पुस्ताज, डाउन्स, पंपास, प्रेरी ये किसके हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड के एग्जाम्पल हैं। नाउ डेजर्ट इकोसिस्टम। अब डेजर्ट इकोसिस्टम कहाँ पर डेवलप होता है? देखिए, पर्टिकुलर प्लेस वेयर देयर इज अ रेनफॉल लेस देन 75 सेंटीमीटर। तो जहाँ पर लेस देन 75 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है वहाँ पर जो है वेजिटेशन डेवलप नहीं हो पाता है और पूरा का पूरा जो एरिया है वो डेजर्ट एरिया में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि वेयर, राइट, वेयर देयर इज अ लेस देन 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल ओवर देयर डेजर्ट इकोसिस्टम जो है वो अकर होते हैं। और डेजर्ट इकोसिस्टम को भी हम फिर हाई टेम्परेचर के आधार पर हॉट और कोल्ड डेजर्ट में क्या कर सकते हैं? क्लासीफाई कर सकते हैं, राइट। द डेजर्ट वेयर टेम्परेचर इज हाई उनको हॉट डेजर्ट्स कहा जाता है और जहाँ पर टेम्परेचर लो होता है उनको कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। तो 3 मार्कर के लिए आप याद रखें, एग्जाम्पल्स ऑफ हॉट डेजर्ट्स आर सहारा डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट्स, कालाहारी डेजर्ट्स, सेनोरन डेजर्ट एंड थार डेजर्ट। तो सहारा, अरेबियन, कालाहारी, सेनोरन एंड थार आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हॉट डेजर्ट्स, राइट। एंड गोवी, ग्रेट बेसिन एंड टकलामकान। तो टकलामकान, ग्रेट बेसिन एंड गोवी are the examples of cold deserts, right? So in this way we have studied the terrestrial ecosystem. In the upcoming lecture we will study aquatic ecosystem. So we will meet in upcoming lecture. Till then, thank you.